Assalamu alaikum. Today we have 19th lecture for Business Finance NGT 232. We were studying about capital budgeting, and the next topic we are going to cover is cash budget. Let's have a brief overview of our last lecture, that is capital budgeting. We studied about different capital budgeting techniques, and in the last lecture we studied about our internal rate of return, our modified internal rate of return, and profitability index. Well, when we talk about capital budgeting and capital budgeting techniques, it's basically when you use different techniques for analyzing different projects which are over the long period of time. So considering that, when we apply different techniques, including that net present value, payback period, discounted payback period, we have furthermore techniques which include internal rate of return, modified internal rate of return, and profitability index. Now when we talk about internal rate of return, it is the discount rate at which our net present value becomes zero, or we can say that that the present value of future cash flows at the rate of IRR. That means at certain particular rate, those future cash flows become equal to the initial outlay or the initial investment, the present value of those initial investment. Now when we write down the formula of NPV, instead of using R, that is the discount rate, we will use IRR, that is your internal rate of return. So what we are going to find out, we are going to find out the internal rate of return or the certain rate, percentage rate at which our net present value becomes zero. So जिस वैल्यू के ऊपर, जिस भी परसेंटेज के ऊपर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, we will consider that as our internal rate of return. Now internal rate of return is found out using hit and trial method and interpolation. For hit and trial method, what we do is we consider the original discount rate. With that discount rate, we we hit the certain percentages, and then we try whether this value is going to zero or not, and at what certain percentage it becomes zero. We find out, let's suppose in our example we had discount rate of 15%. That 15% we tried at 10% then, and then we found out that our original initial investment was at 40,000 rupees is at certain percentage IRR, because we have to make all our future cash flows equal to present value of those future cash flows equal to the discount rate, so that it becomes zero. So we use that interpolation process, and we found out the value of A over B, and then we found out the original answer of IRR, that is your approximate answer. Now then the next step is to recheck that answer. What we do is we put in the values, of IRR, we put in the value of IRR in the formula of NPV instead of R, and then we found out that whether it is equal to zero or not, and if it is, then we use that value as a internal rate of return. Now there is an acceptance criteria for IRR, that is if IRR is less than your discount rate, that is the original discount rate or the hurdle rate that is being decided by the company, then we say that we are going to reject the project. Now if we say that that IRR is greater than your discount rate or your certain rate, hurdle rate, which is set by the organization or the firm, then we say that we accept the project. Now there are some flaws in IRR, that there is a possibility of multiple IRR. For example, if I am having a project whose IRR is 11%, and then we have 55%, that 11 and 55% are two IRR at which our NPV becomes zero. That means that is the value, that is the certain two values of IRR. Which one is to be considered? We normally consider the higher value. Whenever we have two projects and two different IRRs, we will select the one with the higher IRR. So in this case we are going to select the higher, but what is the surety that whether it is the right one or not, or whether our project is getting a return of 11% or 55%. So what we do is, then we find out another technique, and then we find out the rate of return using another technique, that is your modified internal rate of return. It's a modified technique. Now what is modified internal rate of return? It is used when there are no normal cash flows and when there are multiple IRRs, and it is again a certain rate of return which consider your future value of cash flows, cash inflows, and present value of cash outflows.
Then when we talk about MIRR formula, it's 1 plus MIRR power n is equals to future value of cash inflows over present value of cash outflows. What we do is we make two different timelines, one for cash inflows and one for cash outflows. For cash inflows, we find out the future value of cash inflows, and for all the negative values that are your cash outflows, we find out the present value of all those cash outflows. Then we use the formula and find out what is the answer. If the answer of MIRR is the acceptance criteria, if we consider, if MIRR value of MIRR is greater than R, or the discount rate, we say that we accept the project. Now if the value of MIRR is less than R, then we say that we reject the project. Now there is another technique that is called profitability index. It is a certain ratio of your present value of cash inflows over present value of cash outflows, or we can say it is the ratio between the present value of benefits to present value of cost. It is a certain rate which tells you about the profitability of the project, whether the project is going into profit or not. Now the formula for profitability index is equals to present value of cash inflows over present value of cash outflows. What you do is, and then again you will have two different timelines, one for cash inflows and one for cash outflows. For cash inflows you are going to find out the present value, and then for cash outflows you are going to find out the present value. Then you use the formula and find out the value answer of profitability index. Now the acceptance criteria for profitability index is PI is equals to greater than 1, it's acceptable. If profitability index is less than 1, it is rejected. The overall proposed project we used in our example was where we had payback period accepted. We accept the project through payback period, but we reject the project through IRR, through NPV, through MIRR, through profitability index. All these four techniques reject that proposed project. That means we are in original we are going to reject the project. Then we looked at three different ways or the problems which occur in the mutually exclusive projects. Now mutually exclusive projects have certain differences, or they do not properly give you the answer if there is a difference, if there is a time difference, or if there is a scale difference, if there is a cash flow pattern. Now scale difference means you are having two different alternative projects, one require 100,000 in initial investment and one require only 10,000 initial investment, but both the projects have the same life cycle and it is an alternative project. We have one machinery which is to be bought for 100,000 and we have another machinery which is to be bought for just 50,000 rupees. So इन दोनों में कंपेयर करना, दोनों में से कौन सा बेहतर होगा, क्योंकि दे आर द अल्टरनेटिव्स, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है. अब एक की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो, दूसरे इन दैट केस व्हाट वी डू इज वी फाइंड आउट द एनपीवी ऑफ we find out different values and then we select the project on the basis of NPV. Then when we talk about cash flow patterns, for example, we have cash flows of first 2 years for one project, and we have cash flow of another alternative that is for 4 certain years. Or we can say that that is a time difference. Now once we say that there is a decreasing trend in one alternative, the decreasing trend of cash flows in one alternative and increasing trend in another alternative, what we do, we again find out the values and then we decide whether which one is, normally it is used as net present value, but for similarly for time difference and cash flow pattern, what we do is we use a replacement change process. That is not the part of your course, but that replacement change process अगर आप देखना चाहें तो उस पर थोड़ी सी डिटेल देख सकते हैं. उसमें भी हम जो ओरिजिनल इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उसी को री इन्वेस्ट करके बार बार री इन्वेस्ट करके आखिर में अपनी सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स तक की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. Now when we talk about the time difference में क्या है कि you have two different alternatives and or two different projects to be selected from, और उसमें से आपके पास क्या है कि एक की लाइफ साइकिल सिर्फ 2 years है और एक की लाइफ साइकिल 4 years है. Now we have two different project lives. तो इस तरह के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, then we find out, again we use different techniques and then we find out that we can make a certain answer or the certain decision on the basis of that on the basis of those answers or techniques. Then we use a replacement chain process. That replacement chain process is again the initial investment is reinvested on certain percentage rate on the discount rate for those number of years, and then we find out, then we make the equal number of years, reinvest those amount for even for the different cash flow pattern, for scale difference and for the time difference. We use that certain technique, replacement chain, and then we find out what is the best alternative to be choose from. Now that was a bit overview of your last lecture regarding capital budgeting. The next topic we are going to do is cash budget.
Now let's start the next topic, that's cash budget, with first topic of cash management, how we are going to manage our cash. That is what related to cash budget. Well, cash is the most liquid and non-earning asset. It is the most liquid form of asset because it is in the cash form. Now, the basic aim of cash management is to have minimum amount of cash on hand, but at the same time have enough cash to maintain the certain रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कैश. फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे किसी भी टाइम में आपको इमरजेंसी कैश की जरूरत पड़ी है तो आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए, एंड इट शुड हैव एनफ अमाउंट टू मेंटेन द क्रेडिट रेटिंग्स, टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट फ्रॉम द ट्रेड डिस्काउंट्स एंड टू फुलफिल सडन कैश आउटफ्लो. कोई सडन कैश आउटफ्लो हो गया एंड यू नीड सम मनी, देन यू मस्ट हैव अ कैश इन योर हैंड. सो हम ऐसी इतना एनफ, वी मस्ट हैव एनफ कैश कि वो बहुत ज्यादा भी ना हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश that is enough for certain cash outflow, for taking benefits from the trade discounts and other certain usage. तो कैश मैनेजमेंट में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट तरीके से यूज करती हैं, कैश मैनेजमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स यूज करती रही हैं. इससे पहले जो भी टेक्निक्स थी वो हम अभी स्टडी करते हैं. एट द एंड of the day, when I talk about the cash management, nowadays it is totally electronically. So we are going to see how it is being done, and then we do certain forecasting of the cash budget in order to find out the net cash flows, or we can say the estimation of the your cash flows. So let's look at this. Let's look at cash management system. We have certain level of collections. We have to do certain collection of our cash. We have to make certain payments. That is your disbursement. We disperse the cash to the people to whom we have to make the payments. For example, we have to make the payments to our owners, to the dividends in the form of dividend. Then we have to make the payments to our suppliers, to everyone. Or to everyone from whom we have bought something, or we have to make the cash payments or account payable जिसको कहते हैं जो हमने किए हुए, और then we have to make some certain payments. So we make certain payments to disbursement in case of disbursement to certain suppliers, to certain other creditors, and then to the as an interest payment, as a tax payment. These are the disbursement. Then we have to make certain collections. That is, those collections are in the form of getting a return. For example, आप नए कस्टमर्स को दिया है और क्रेडिट सेल्स किए, क्रेडिट सेल्स से जो कि कुछ अमाउंट आ रही है, या अगर आपने किसी को सप्लाईज किए हैं तो आपको कोई अमाउंट आने वाली है. इस तरह की जितनी भी पेमेंट्स होती है वो आपकी कलेक्शंस होती हैं, जिनको मोस्ट ऑफ द टाइम आप कलेक्शंस या अकाउंट रिसीवेबल कहते हो. देन यू हैव सर्टेन मार्केटेबल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट. अब आप इस कैश को क्या क्या करते हो, यू गेट द कलेक्शन, यू मेक डिस्बर्समेंट, और आप कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी करते हो जिनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट कहते हैं. आपने बहुत टाइम देखा होगा कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के ऊपर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा होता है, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट लिखा होता है. वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपकी कौन सी, आपको पता है कि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर द शॉर्ट टर्म, जो हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म लिक्विड सिक्योरिटीज होती हैं जो कि आप खरीद के एज एन इन्वेस्टमेंट अपने पास रख रहे होते हैं, एंड यू आर गेटिंग रिटर्न ऑन देम. नाउ after getting a collection, you make certain disbursement, that certain is, and you make certain marketable security investment. उसमें से आपके पास कुछ रिटर्न आ रहा होता है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है और कुछ रिटर्न आ रहा होता है, ये भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा होता है. इन केस ऑफ कलेक्शन यू हैव कैश इनफ्लो, इन केस ऑफ डिस्बर्समेंट यू हैव कैश आउटफ्लो. इन सब प्रोसेस को सब की सब प्रोसेस जो है वो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है टू द कंट्रोल थ्रू इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग. वी हैव अ कंट्रोल ऑफ दिस कैश थ्रू इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग. व्हाट यू डू इज यू मेक रिपोर्टिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, हम कैश के जर्नल एंट्रीज करते हैं, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ये जितने भी होती हैं स्पेसिफिकली योर जर्नल एंट्रीज, ये सब आपकी बताती है कैश इनफ्लो आउटफ्लो कितना हो रहा है, और दैट इज योर इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग. जब आप इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग करते हो तो यू हैव सर्टन सेट ऑफ बुक्स जिनके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कितना कलेक्शन आया, कितनी पेमेंट्स हुई है, और क्या कितनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, यू आर गेटिंग रिटर्न. वहां से आपके फंड्स फ्लो और इन्फॉर्मेशन फ्लो हम कह सकते हैं कि जो आप एरोज देख रहे हैं इन डार्क कलर्स, दे आर द फंड्स फ्लो, एंड दोज व्हिच आर इन डॉटेड लाइंस ऑफ एरोज, दे आर इन्फॉर्मेशन फ्लो. तो योर इन्फॉर्मेशन इज फ्लोड फ्रॉम ऑल दीज सर्टेन एक्टिविटीज टू योर फॉर योर रिपोर्टिंग, एंड देन उस रिपोर्टिंग के थ्रू हम देखते हैं कि कितना ज्यादा कैश मैनेज हुआ है, एंड देन वी फोरकास्ट फॉर आवर फ्यूचर. Now the first step is speeding up your cash receipt. We are going to consider collections. अब जो cash management system है उसमें सबसे पहले हमने collections को select किया. Collection is that is the amount of cash you are getting, the cash inflow. We are talking about cash inflow. So
what we do is the first step is to speed up the preparing and mailing of the invoice. For example, if someone has purchased some certain amount of product from you, certain unit of product, you will make an invoice and send that invoice to that person. Or if you are going to get certain, you have to get certain return on that your investment, और किसी भी किस्म की ऐसी कलेक्शन जो कि कैश की फॉर्म में आनी है आपके पास, उसके हम रिसिप्ट्स इनवॉइस बनाते हैं. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि उस इनवॉइस बनाने का टाइम और उसको मेल करने का टाइम या उसको उस बंदे को देने का टाइम, जो प्रिपेयरिंग टाइम और मेलिंग टाइम है, उसको जरा स्पीड अप कर दिया जाए तो आपकी कलेक्शन जरा ज्यादा बेहतर और जल्दी हो जाएंगी. हमारा प्रोसेस क्या होता है कि जितने टाइम में हमारी जो पूरी ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होती है या हमारी कैश कन्वेयंस साइकिल होती है, दैट कैश कन्वेयंस साइकिल इज कि आपने एक प्रोडक्ट सेल आउट किया और आपने कहीं से सप्लाईज लिए हुए थे. अब आपने कहीं से सप्लाईज लिए हुए थे, आपने कहीं पेमेंट करनी है, वो सप्लाईज यूज करके आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद आपने आगे बेच दिया, बेचने के बाद आपने अकाउंट रिसीवेबल मतलब क्रेडिट सेल्स की. वो जो क्रेडिट सेल्स थी और आपने क्रेडिट परचेजेस की हुई थी, क्रेडिट पे परचेज की थी, चीजें खरीद ली, पैसे नहीं दिए थे, उन चीजों को यूज करके प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में जाके बेचा, क्रेडिट सेल. अब उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में हमें ये वापस आएगा, जो हमने प्रोडक्ट सेल आउट किया है, उससे जो भी कैश वापस आएगा, कैश रिटर्न आएगा, दैट कैश रिटर्न वुड बी देन गिवन टू योर, उसमें से जितनी हमने पेमेंट्स करनी, जो क्रेडिट परचेजेस की थी, उनकी पेमेंट्स की जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, दैट इज योर कैश बैलेंस. सो पेमेंट्स में से ये पूरा जो आपकी कैश कन्वर्जन साइकिल को कंप्लीट करता है. और बड़ा जरूरी है कि इस पूरे होल प्रोसेस को स्पीड अप करो, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न आप फाइंड आउट करते हो, अकाउंट पेबल रिटर्न फाइंड आउट करते हो, इनकी सर्टन रेशियोज होती हैं, टर्नओवर रेशियोज होती हैं, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर. तो जितना ज्यादा इसकी वैल्यू कम होती है उतना अच्छा होता है. दैट मीन्स your company is efficient in collecting your cash and in making purchases. Now another thing is to accelerate the mailing of payments from customers. For example, अगर customers ने आपकी पेमेंट जो भी कलेक्शन आपने क्योंकि करनी है, तो जिस टाइम की पेमेंट करनी है, उस प्रोसेस को आप स्पीड अप करो कि किस तरीके से लोग जल्दी से जल्दी आपके कस्टमर्स आपकी पेमेंट करें जहां पे आपने क्रेडिट सेल्स की हुई है. Now another step is to reduce the time during which payments received by the firm and remain uncollected. That means कि मेरे पास पेमेंट आ गया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव गॉट अ चेक अमाउंट या डिमांड ड्राफ्ट या किसी भी किस्म की कोई चीज मेरे पास आई है, जो भी चेक आया, उस चेक को जाके बैंक में जमा कराना और फिर उस कैश अमाउंट को अपने अकाउंट में जमा कराना, ये जो पूरा होल प्रोसेस है, इसको स्पीड अप या इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम कर दे तो वी कैन गेट कलेक्शन ऑन टाइम. Now let's look at some of the floats जो कि हम collection के अंदर consider करते हैं. The first thing is your collection float. Now collection float is the total time between the mailing of the check by the customer and the availability of cash to the receiving firm. That means कि कलेक्शन फ्लोट क्या है कि आपके पास कुछ एक पूरा प्रोसेस, एक जो आपका कस्टमर है उससे चेक उसने मेल किया और आपके पास जब फर्म के पास जब तक वो वाला होल प्रोसेस कि आपके कस्टमर ने कैश भेजा जिस दिन, उस दिन से आगे तब तक हम कैश को जो चेक भेजा उस चेक को कैश फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. दैट इज योर कलेक्शन फ्लोट. वो जो टाइम पीरियड, होल टाइम पीरियड होता है, उसको हम कलेक्शन फ्लोट कहते हैं. Now within collection float, what we have is we have mail float, we have processing float, and we have availability float. That collection float consider the first thing is your mail float. A mail float क्या है? That is the time the check is in the mail. For example, your customer has made a certain check in the name of the firm. The customer send the check to the bank or your firm. अब कस्टमर ने जब चेक भेजा उस टाइम तक, वो जब तक इसके पास पहुंचता है, फर्म के पास पहुंचता है, कस्टमर से के टाइम सेंड करने, जब कस्टमर से सेंड किए वो टाइम से लेके जब तक आपकी ओवरऑल रिसीविंग होती है आपके फर्म के पास, तो वो जो टाइम है उसको हम मेल फ्लोट कहते हैं कि वो टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड में आपके जो चेक है वो इन द मेल रहता है. Then we have the processing float. The processing float में क्या? processing float में आपकी फर्म ने चेक रिसीव किया. Now what is processing float? Time it takes a company to process a check internally. अब internally वो कैसे होगा कि फर्म ने चेक रिसीव किया, उस चेक को वो क्या करते हैं, डिपॉजिट कराएंगे. तो वो टाइम पीरियड, इफ यू लुक एट द स्लाइड, तो वी हैव मेल जहाँ पे से फर्म रिसीव्स द चेक एंड वी हैव फर्म डिपॉजिट द चेक. तो फर्म ने जितने टाइम में वो टाइम पीरियड वहां से स्टार्ट होगा कि फर्म ने चेक रिसीव किया टिल फर्म ने डिपॉजिट कराया. फॉर एग्जाम्पल आज शाम को अगर मैं करती हूँ कलेक्ट अपना एक सर्टन चेक रिसीव किया और वो मैं अगले दिन शाम को जाके उसको डिपॉजिट करवाती हूँ, तो वो जो टाइम पीरियड जितने टाइम पीरियड में मेरे पास आया है चेक और उस टाइम पीरियड से वहां तक जब तक मैंने उसको प्रोसेसिंग में डाला है, वो सारा प्रोसेस जो वो टाइम पीरियड उसके बीच में होता है, एक पूरा दिन
लेट्स सपोज अगर मैं कह रही हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दी, जो भी टाइम पीरियड होगा दैट इज योर प्रोसेसिंग फ्लोट। इसको स्लो करना, इसको स्पीड अप करना है, आपके मेल फ्लोट को स्पीड अप करना है। एंड द लास्ट थिंग इज योर अवेलेबिलिटी फ्लोट। नाउ द टाइम कंज्यूम्ड इन क्लियरिंग द चेक थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। अब वो डिपॉजिट तो हो गया, क्या हुआ कि पहले रिसीव हुआ, पहले चेक वहां से कस्टमर ने भेजा, टिल यू गेट रिसीव द चेक, वो टाइम पीरियड इज योर मेल फ्लोट। रिसीव करने के बाद से डिपॉजिट करने तक इज योर प्रोसेसिंग फ्लोट। डिपॉजिट करने के बाद कैश रिसीव करने तक, या आपका बैंकिंग सिस्टम जो है उस चेक को क्लियर करके आपके अकाउंट में पैसे डाले, वो वहां तक वो जो पूरा प्रोसेस हो गया, वो जो टाइम पीरियड होगा उसको हम अवेलेबिलिटी फ्लोट कहते हैं। सो द ओवरऑल कलेक्शन फ्लोट इज व्हाट, मेल फ्लोट, प्रोसेसिंग फ्लोट एंड अवेलेबिलिटी फ्लोट, ऑल दीज थ्री कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कलेक्शन फ्लोट। अब इस पूरे होल प्रोसेस को स्पीड अप करना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रोसेस को हम स्पीड अप करते हैं तो वी कैन गेट कलेक्शंस इमीडिएटली और we can get them earlier. Then we have a deposit float, time during which the check received by the firm remains uncollected funds. For example, आपकी फर्म ने रिसीव कर लिया। अब प्रोसेसिंग फ्लोट और अवेलेबिलिटी फ्लोट का जो ओवरऑल टाइम पीरियड होता है, दैट मीन्स रिसीव करने से कैश तक, रिसीव से कैश फॉर्म में आने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम डिपॉजिट फ्लोट कहते हैं। दैट इज मैंने रिसीव किया, चेक डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करने के बाद वो मुझे कैश फॉर्म में, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम डिपॉजिट फ्लोट कहते हैं। देयर वाज अनदर सिस्टम दैट इज लॉक बॉक्स सिस्टम, जो कि अब बिल्कुल ही शायद यूज होता हो कहीं पे, लेकिन बहुत रेयर यूज होता है अब, क्योंकि एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉक बॉक्स सिस्टम, द पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेंटेन्ड बाय फर्म्स बैंक दैट इज यूज्ड एज अ रिसीविंग पॉइंट फॉर अ कस्टमर्स रेमिटेंसेस। अब कस्टमर से आपने कुछ चाहिए, लेट्स सपोज इफ आई एम सिटिंग इन इस्लामाबाद एंड आई हैव डिफरेंट कस्टमर इन कराची, इन लाहौर, इन क्वेटा, इन पेशावर, समवेयर इन अटक, समवेयर इन सवात, इस तरह के जितने भी एरियाज में हमारे पास डिफरेंट एरियाज में मेरे कस्टमर्स हैं। नाउ इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन अर्लियर, तो हम क्या करते हैं, फर्म्स ने क्या डिसाइड किया होता है कि वो अपने डिफरेंट लॉक बॉक्स, एक सर्टेन बॉक्स जो है वो बैंक के थ्रू कहीं पे रखवा देते हैं। लेट्स सपोज पोस्ट ऑफिस में रखवा दिया, बैंक के बाहर रखवा दिया, किसी उसी बैंक की ब्रांच में एक बाहर रखवा दिया। वो एक लॉक बॉक्स सिस्टम होता है, एक बिल्कुल बॉक्स होता है जो कि लॉक। अब जो भी कस्टमर आपके पैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम द सवाद देना चाहते हैं, या समवन हु इज इन सिटिंग इन कराची वहां से पैसे देना चाहते हैं, तो वो उन सर्टेन बॉक्स के अंदर डाल देंगे, वो बैंक उसको ले लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। इस सिस्टम को जरा स्पीड अप करने के लिए, बजाय इसके कि कस्टमर वहां कराची से अपना एक पूरा चेक मेल करता, and we have certain mail float and deposit processing float, directly कस्टमर ने आपको चेक पहुंचा दिया आपके बैंक के तक, उस बैंक वाला जो है, अब इसका प्रोसेस देख लें कि क्या होता है लॉक बॉक्स प्रोसेस। लॉक box process, if you look at this, so the first thing is to customers are instructed to mail their remittances to the lock box location. That means कि lock box की जो location होगी वहाँ पे customers को कहा जाता है कि अपने certain remittances को mail करना, बजाय कि एक बंदा who is sitting in Karachi and sending that check or remittance directly to me in Islamabad, what that person is going to do is to एक कराची के अंदर ही जो लोकेशन बनी हुई आपके लॉक बॉक्स की, उसमें जाके अपने रेमिटेंसेस मेल कर देगा या उसमें डाल देगा। नाउ बैंक पिक्स अप रेमिटेंसेस सेवरल टाइम्स डेली फ्रॉम द लॉक बॉक्स। अब मेरा जो बैंक है, लेट्स सपोज इफ आई हैव सर्टेन बैंक, नेशनल बैंक लेट्स सपोज, तो नेशनल बैंक की बात की तो नेशनल बैंक का कोई भी बंदा कहीं पे भी, जहां जहां नेशनल बैंक है उनकी उस ब्रांच का सर्टेन जो कराची में ब्रांच है उनकी वो बंदा लॉक बॉक्स जो है वो हर रोज दिन में कई बार वो उस लॉक बॉक्स को चेक करते फॉर रेमिटेंसेस। वो रेमिटेंसेस जब आते हैं तो बैंक डिपॉजिट रेमिटेंसेस इन द कस्टमर्स अकाउंट एंड प्रोवाइड डिपॉजिट स्लिप विद अ लिस्ट ऑफ पेमेंट्स। अब वो क्या करते हैं कि आपके जहां पे भी आपका जो बैंक है वो आपके अकाउंट में, कस्टमर ने लॉक बॉक्स में डाल दिया, लॉक बॉक्स से चेक किया, बैंक ने डायरेक्टली उसको प्रोसेस किया, रेमिटेंसेस आपके कस्टमर के अकाउंट में डाले और एंड प्रोवाइड्स अ डिपॉजिट स्लिप विद अ लिस्ट ऑफ पेमेंट्स। और लिस्ट ऑफ पेमेंट जो पेमेंट्स आपकी हो गई है या जो भी सर्टेन अमाउंट्स है वो कर दिया। अब लॉक बॉक्स सिस्टम में ये है कि वो हम कलेक्शंस भी कर सकते हैं एंड इफ वी हैव टू मेक द पेमेंट्स, तो आपके कस्टमर्स की पेमेंट्स भी हो सकती हैं अगर कस्टमर्स के पास की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो। Now company receives the list and any additional mail item, तो जितने भी मेल आइटम्स होते हैं या जो भी लिस्ट होती है वो कंपनी रिसीव कर लेती है। So this is the lock box system। इसका एडवांटेज क्या था, रिसीव रेमिटेंसेस सूनर विच रिड्यूसेस द प्रोसेसिंग फ्लोट। वो प्रोसेसिंग फ्लोट को करना कि जी यहाँ से हमारे पास आ रहा है यहाँ जा रहा है, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो हम उस टाइम टेकिंग को कम कर देते हैं, स्पीड अप थ्रू लॉक बॉक्स सिस्टम। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ लॉक बॉक्स सिस्टम इज जनरली नॉन एडवांटेजेस फॉर स्मॉल रेमिटेंसेस। अब बहुत ही थोड़ी सी स्मॉल रेमिटेंसेस है उनके लिए भी लॉक बॉक्स, अब लॉक बॉक्स सिस्टम के ऊपर जो कॉस्ट लगेगी वो शायद रेमिटेंसेस से कवर ना हो रही हो, तो दैट कॉस्ट इनकर्ड क्या बैंक से बात करो और फिर पूरा लॉक बॉक्स सिस्टम लगाया जाए।
ये सब सिस्टम्स तो वो है जो कि हमारे पहले ही यूज हुआ करते थे, अभी भी स्टिल देयर आर थिंग्स के उनको अलाउ किया जाता है कि आप अपना मेल भी कर सकते हो, आप अपने डायरेक्ट पेमेंट्स भी कर सकते हो, बैंक में रेमिटेंसेस भी जमा करवा सकते हो। दीज आर द थिंग्स जो कि अभी भी है, लेकिन अब जरा सिस्टम चेंज हो गया। नाउ द सिस्टम इज ऑन टोटली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉनिक क्या है कि कंपनी के पास पता है, कंपनी अपनी ऑनलाइन, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव देयर ऑनलाइन सिस्टम। तो ऑनलाइन आपने ऑर्डर किया, यू गिव योर क्रेडिट कार्ड नंबर एंड देन आपकी ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाती है टू द फर्म्स अकाउंट। एक सिस्टम ये है। दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये है कि व्हाट यू, आप अपने कस्टमर्स को चीजें बेचते हो, लेट्स सपोज क्रेडिट सेल्स की है, तो क्रेडिट सेल्स में व्हाट यू डू इज यू टेल देम योर अकाउंट नंबर कि मेक योर सर्टेन पेमेंट हियर। तो वो उस सर्टेन आपके अकाउंट नंबर में डायरेक्ट जाके आपके अकाउंट नंबर में ऑनलाइन डिपॉजिट करा देते हैं। दैट ऑनलाइन डिपॉजिट डायरेक्टली इन योर अकाउंट रिड्यूसेस द टाइम पीरियड। तो वो टाइम पीरियड एक तो आपका कम हो जाता है और आपकी डायरेक्ट पेमेंट आपके ही अकाउंट में डायरेक्टली चली जाती है, और आप बैंक से बाद में लिस्ट लेके देख सकते हो कि कौन से कस्टमर ने कहाँ पे पेमेंट की। या यू स्टिल कंपनीज हैव द सिस्टम जहाँ पे कस्टमर्स आपको अपनी कैश पेमेंट्स की डिटेल्स दे देते हैं। नाउ दिस इज योर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये पहला सिस्टम था, अब जो है जरा सिस्टम चेंज हो गया है। नाउ क्योंकि हम जब कैश मैनेजमेंट की बात करें, हमने पहले कलेक्शंस की बात की, देन लेट्स टॉक अबाउट डिस्पर्समेंट। डिस्पर्समेंट में क्या है कि वो सब पेमेंट्स जो आपने करनी है, लेट्स सपोज इफ यू हैव टू मेक पेमेंट्स टू योर सप्लायर्स, तो सेम आप सिस्टम यूज करते हो। नाउ इलेक्ट्रॉनिकली व्हेन वी टॉक अबाउट टुडे, सो व्हाट वी डू इज वी मेक सर्टेन पेमेंट्स टू बैंक अकाउंट, और अपने बैंक अकाउंट से ही हम अपने डायरेक्टली दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वी कैन यूज एटीएम एज वेल, वी कैन हैव सर्टेन रिसीप्ट, क्योंकि कंपनीज में रिसीप्ट होना बहुत जरूरी है। तो व्हाट यू डू इज आप एक सर्टेन रिसीप्ट लेते हो, उस रिसीप्ट को पे आउट कर देते हो टू योर कस्टमर, टू योर पर्सन, टू द क्रेडिटर जिसको आपने पेमेंट करनी है। अब आप चेक के थ्रू कर सकते हो, आप उसके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करा सकते हो, रिसीट्स बना सकते हो, और यू कैन गेट रिसीव फ्रॉम देम एज वेल। तो ये आपका आजकल का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैश मैनेजमेंट, दैट मींस वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि कैश मैनेज कैसे होगा। वी हैव सीन की किस तरह कलेक्शंस होंगी, किस तरीके से डिस्पर्समेंट्स होंगी। ये सब करने के बाद, ये सब भी हो जाने के बाद, आप इन्वेस्टमेंट्स भी, आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किए, वहां से रिटर्न, वो एक टोटल डिफरेंट प्रोसेस है, हाउ यू इन्वेस्ट एंड हाउ यू आर गेटिंग द रिटर्न। इस सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है कैश बजट, जो कि फोरकास्टिंग करता है, जो कि हेल्प करता है ये प्लान करने में कि आगे प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज कितने होंगे, हर साल के लिए कितना होना चाहिए, और कितना हमें टारगेट कैश बैलेंस मैनेज करना चाहिए। अगर कलेक्शन इस सर्टेन स्पीड रेट से आएंगी तो हमारी क्या होगी, आगे फ्यूचर में हमें कितना टारगेट कैश मैनेज करना चाहिए है। कैश मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, दैट इज योर कैश बजट। कैश बजट इज अ शेड्यूल शोइंग प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज ओवर अ टाइम पीरियड। एक पूरा आपके पास शेड्यूल है जो कि बताता है कि कितने कैश इनफ्लोज, कितने कैश आउटफ्लोज हो रहे हैं, कितना टारगेट कैश बैलेंस ओवर द टाइम पीरियड हमें मेंटेन करना है। देन इट इज अ प्राइमरी कैश प्लानिंग टूल एंड इट शोज द सरप्लस एंड डेफिसिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कलेक्शन डिस्पर्समेंट बताने के साथ साथ वो आपको ये बताता है कि टारगेट कैश बैलेंस इतना था इस साल या इस महीने, इतना सरप्लस, इतना डेफिसिट हुआ है, तो वो ओवर द टाइम पीरियड आपका ये चीजें मेंटेन हो जाती हैं। लेट्स लुक एट वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द कैश बजट। वी हैव we will consider this question for forming or for preparing that cash budget and forecasting certain cash inflows and outflows for certain period of months. Now let's look at the question. Micro rice sales in the month of May and June have been rupees 200 million and rupees 250 million respectively. The company expects that sales in the month of July till September would be, in July it would be 300 million rupees, in August it would be 400 million, and in September it would be 500 million. Now before starting this question, or before I'll explain it, please do have your paper, a pen and a calculator in order to solve this question with me. ठीक है, जिसके साथ साथ और साथ साथ आप चीजें लिखते जाएं तो वो आपके लिए इजी होगा to understand and get them. So our sales for July, August and September are 300, 400 and 500 million rupees respectively. Now a company give credit to its customer for 90 days. That means कि कंपनी जो है वो 90 डेज तक के लिए कस्टमर्स को क्रेडिट देती है। दैट मीन्स मैंने आज सेल किए तो आज से 90 डेज तक के अंदर या 90 डेज के ऊपर कंप्लीट होने के अंदर कस्टमर हमें पेमेंट करेगा। नॉर्मली 20% ऑफ द सेल्स आर पेड इन द मंथ ऑफ सेल। नाउ ऑन एवरेज अगर हम देखें, ऑन एवरेज देखा जाता है कि कंपनी की पिछले से ट्रेंड देखें तो क्या ट्रेंड है कि जी नॉर्मली 20% ऑफ द सेल, जो ओरिजिनल सेल अमाउंट हमने की है उसका 20% ऑफ द कलेक्शन जो है वो इन द मंथ ऑफ सेल हो जाता है। जिस मंथ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मेकिंग मई में, अगर मैंने फर्स्ट सेल की है तो मई में सेल्स हुई है,
मई के अंदर उस सेल की 20% जो है वो मई में ही मिल जाता है। 70% ऑफ द सेल्स आर पेड ड्यूरिंग द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल। मई में मैंने पेमेंट की है और मई में मैंने कस्टमर्स को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्स की है, ठीक है, सेल्स हो गई, वो उन सेल्स का 20% तो मुझे मंथ ऑफ सेल में ही मिल जाएगा। 70% मुझे अगले महीने मिलेगा, दैट मीन जून में 70% मिलेगा। Now 70% of the sales are paid during the month immediately following the month of sale and the remaining 10%, अब इन सेल्स का 20% आपको पहले मंथ में आ गया, 70% उससे अगले मंथ में आ गया, और जो रिमेनिंग 10% है वो उससे भी अगले मंथ, दैट मीन्स जो मंथ ऑफ सेल था उससे 2 महीने बाद आपको, मई में अगर मंथ ऑफ सेल थी तो जून जुलाई में जाके आपको 10% ऑफ द सेल्स यू गेट आर पेड इन द सेकंड मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल। नाउ लेट्स लुक एट द कॉस्ट। ये तो आपकी सेल्स हो गई। कॉस्ट एवरेज 70% ऑफ द सेल प्राइस ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, दैट मीन्स जो भी आपकी सेल प्राइस है उसका 70% ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट आपकी कॉस्ट इनकर करती है। हम करते हैं ना सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो जो कॉस्ट इनकर किस तरीके से होती है, वो चीज जो कि परचेजेस हमने की है उनकी पेमेंट कैसे करनी है। तो जितनी भी ओरिजिनल सेल प्राइस है उसका 70% एक्चुअल में आपकी कॉस्ट होती है एंड रिमेनिंग 30% आपका प्रॉफिट या अदर चीजें इंक्लूड होती है। सो क्या है कि जो सेल्स प्राइस है उसका 70% इज योर कॉस्ट। तो सेल्स प्राइस का 70% हम फाइंड आउट करेंगे। दीज कॉस्ट पेमेंट्स आर मेड इन द मंथ ऑफ सेल ऑफ फिनिश्ड गुड, दैट मीन्स कि जिस मंथ में मैंने सेल आउट किया, फॉर एग्जांपल मैंने मई में सेल किया तो मई में ही मैं पेमेंट मेड करूंगी 70% ऑफ द सेल्स प्राइस। 70% ऑफ दैट सेल प्राइस, मई में जो मेरी सेल थी उसका 70% निकाल के मंथ ऑफ मई में ही मैं पेमेंट करूंगी, जून के लिए जून में, जुलाई के लिए जुलाई में। Now company also makes several other payments and these payments are added under the title of other payments, ठीक है, other payments भी आते हैं और title of other payments में include होता है। These other payments are expected to be 55 million, 70 million and 85 million in the month of July, August and September। उन्होंने आपको ये बता दिया है कि different other payments होंगे, उन other payments में कोई भी expenditures हो सकते हैं, कोई other expenses हो सकते हैं। वो हम क्या कहते हैं कि वो payments जो हमने करनी है other expenses वगैरह की, वो हमारी किस तरह होंगी, 55 हर मंथ की उन्होंने बता दी, 55, 70 and 85 in the month of July, August and September respectively. Then we have, apart from these, company expects to pay taxes of rupees 30 million in the month of September. So September में जाके कंपनी, आपकी जो कंपनी है उसने एक certain payments भी करनी है। That certain payment is of 30 million जो आपकी tax payment है in the month of September. The company also wants to maintain a target cash balance of rupees 10 all the time. अब कंपनी क्या चाहती है कि उसके पास 10 million rupees का जो कैश है वो हर वक्त उसके पास मेंटेन रहे। जो हम कैश मेंटेनेंस की कैश मैनेजमेंट जो मैंने सबसे स्टार्ट में बात की कि एनफ टाइप ऑफ कैश आपके पास होना चाहिए कि आप सर्टन मिनिमम अमाउंट और सर्टन इतना के सर्टन कैश आउटफ्लोज हो तो उनकी पेमेंट्स कर सकें। तो इतना तो बैलेंस कंपनी ने मैनेज करना है। एंड एट द मोमेंट एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई, क्योंकि हम जुलाई के स्टार्ट की बात करें तो कंपनी हैज कैश रुपीज 15 मिलियन। इस वक्त कंपनी के पास जो कैश है दैट इज 15 मिलियन रुपीज आपके पास कंपनी के इस वक्त एज टारगेट कैश बैलेंस या कैश एट हैंड इस वक्त 15 मिलियन है। Now keeping these projections in view, prepare a cash budget for the month of July, August and September for the micro drive. Also show that what would be the surpluses and shortfalls in these months. अब क्या इस मंथ में कितनी डिफिसिट, कितना सरप्लस होगा, प्लस इन सब 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए कैश बजट, दैट मींस कैश फोरकास्टिंग करके एक फॉर्म ऑफ कैश बजट बनाया जाए। Now let's look at this thing how we are going to form the cash budget. Now the first thing is the company estimates the sales for each period during the planning period. तो जो पूरा प्लानिंग पीरियड है उसके अंदर पहले तो कंपनी एस्टिमेट करती है अपने सेल्स। लेट्स सपोज इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, तो जनवरी से लेके दिसंबर तक की मेरी जितनी सेल्स होंगी, अब पिछले 5 साल, अब इसमें होता क्या, हम वही चीज के पिछले 5 साल को कंसीडर करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं। वी आर गोइंग टू डू द ट्रेंड एनालिसिस कि जी पिछले सालों में इस तरीके से हर मंथ सेल रही है, इतने ही यूनिट ऑफ सेल्स बिके, इतना ऑन एवरेज इतनी अमाउंट थी। अब क्या करेगी कंपनी ने पिछला ट्रेंड एनालिसिस देखा, उस ट्रेंड एनालिसिस की बेसिस पे आप फ्यूचर फोरकास्ट करते हो और देखते हो कि फ्यूचर में आपकी क्या सर्टेन अमाउंट की क्या वैल्यू आ रही है। अब ये देखना और किस तरीके से ये चीज मैनेज होगी, वो क्या करती है कंपनी कि अपने एस्टिमेट करके फॉर द नेक्स्ट मंथ, दैट मींस कि अगर पिछले सालों में ये एवरेज रही थी या इतनी सर्टेन अमाउंट थी, उसको फोरकास्ट किया फॉर जनवरी टू दिसंबर। अब जनवरी से दिसंबर, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि 2012 में इतनी सर्टेन थी तो 2013 के लिए मैं पूरा फोरकास्टिंग कर सकती हूँ। 2013 और 12 और 13 को देख के मैं फोरकास्ट कर सकती हूँ फॉर 2014। तो 2014 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या आपकी सर्टेन पेमेंट्स हो सकती हैं या क्या आपकी सर्टेन अमाउंट ऑफ
क्या कैश होगा, क्या आपकी सेल्स होंगी, कितनी आपको पेमेंट करनी है, क्या परसेंटेज अमाउंट है, क्या एवरेज अमाउंट है, ये सब एस्टिमेट किया जाता है। अच्छा जी, देन नेक्स्ट द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन विल द सेल्स एक्चुअली जनरेट कैश। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्स आपने कर दी, अब वो क्रेडिट सेल्स है, उसका ओरिजिनल पेमेंट या मैंने सेल्स की, सेल्स में से 20% सेल्स जो है मेरी वो कैश पेमेंट थी, दैट मीन्स वो मुझे उसी वक्त मिल गया। द रिमेनिंग 80% जो है वो मेरा क्रेडिट सेल्स थी, जो एक महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, अगले कमिंग अप 3 मंथ्स में मुझे वो आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी सारी पेमेंट्स होंगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कब कैश जनरेट हो रहा है। अनदर पॉइंट टू कंसिडर इज सेल्स मेड फॉर क्रेडिट डू नॉट प्रोड्यूस इमीडिएट कैश इनफ्लोज। दैट मीन्स वो क्रेडिट सेल्स है तो उसी वक्त आपको कैश इनफ्लोज नहीं आते, वो उसी टाइम पीरियड में आते हैं कि अगर लेट्स सपोज 90 डेज दिए हुए तो हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कुछ पेमेंट्स हो रही हो। एंड द कैश बजट मस्ट टेक दीज डिलेज इनटू अकाउंट एंड कस्टमर्स पेमेंट हैबिट्स। अच्छा, अब ये चीज पहले देख लें कि कैश बजट जो है वो जब भी बनाया जाएगा, फोरकास्टिंग की जाएगी, तो इस चीज को इन लाइन करना बड़ा जरूरी है। ये देखना कि आपकी कंपनी की क्या पॉलिसी है, कंपनी जो है वो किस एवरेज पे चल रही है, कि सेल्स कर दी, ठीक है, वो क्रेडिट सेल्स की, उन क्रेडिट सेल्स से मुझे जो रिटर्न आएगा, ठीक है, वो कितने टाइम में मुझे वो सेल्स की कैश पेमेंट मिलेंगी, इन सबको अपने कैश बजट, दैट मीन्स फोरकास्टिंग करने वक्त, क्लास प्लानिंग करने वक्त ये सब कंसिडर करना जरूरी है। नाउ देयर इज अनदर थिंग अबाउट द पेमेंट, दैन कस्टमर्स पेमेंट हैबिट्स टेंड टू रिमेन द सेम ओवर द टाइम। अब देखें, आपको पता है कि अब इसमें जो एक assumption वो ये की जाती है कि कस्टमर की जो पेमेंट हैबिट्स है, दैट मीन्स कि अगर उसने एक पेमेंट कल करनी है, एक परसों करनी है, या आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी पेमेंट हैबिट्स चेंज नहीं होती, ये एक assumption की जाती है। क्यों? क्योंकि एक सर्टन एवरेज फाइंड आउट किया जाता है कि ऑन एवरेज लोग नॉर्मली इतने इसी तरीके से पैसे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई से कि जी फर्स्ट ईयर है, पहले साल में या एक पहले महीने में इतनी मैंने सेल्स की, 20% मुझे सेल्स आ गई, जो रिमेनिंग क्रेडिट सेल है वो 90 डेज के अंदर, दैट मीन्स जब मैंने मई में सेल्स किए, मई से आगे जून जुलाई अगस्त तक मेरे पास 3 महीने हैं जिसमें मुझे पेमेंट्स आएंगी। इन 3 महीनों के अंदर अब क्या है कि कुछ लोग हैं जो उनकी पेमेंट हैबिट्स है वो किस तरह से है कि मैक्सिमम लोग जो है 70% पहली मंथ में दे देते हैं, जो रिमेनिंग 10% है वो अगले महीने देते हैं, कुछ ऐसे जो 40% शायद पहले दें, फिर 30% दें, फिर 10% दें। वो पेमेंट हैबिट्स जो है कि किस तरीके से हमारे पास आ रहे, दे रिमेन सेम ओवर द टाइम पीरियड। नाउ द थर्ड स्टेप इज दैट इज द कंपनी यूज द प्रोजेक्टेड सेल्स एंड पेमेंट पैटर्न टू प्रिपेयर द कैश इनफ्लोज। अब वो जो कैश इनफ्लो, जो हम, अगर आपको याद हो, जब कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे थे तो अपने लास्ट 17-18 लेक्चर में, तो लेक्चर नंबर 17 और कैश बजटिंग, कैपिटल बजटिंग की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने एक बात की थी कि कैश इनफ्लोज को एस्टिमेट किया जाता है, जो कि कैपिटल बजटिंग का फर्स्ट प्रोसेस होता है। अब कैपिटल बजटिंग के कैश इनफ्लोज आपने पहले अपने प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज किए, उन प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोज क्या आएंगे उनको फोरकास्ट किया जाता है। अब वो जो फोरकास्टिंग की जाती है, अपने प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज देखे जाते हैं, पिछला ट्रेंड एनालिसिस देखे कि इतने सेल्स होंगी, इतनी पेमेंट। अब ये जो प्रोजेक्टेड सेल्स की कलेक्शन या पेमेंट ऑफ दोस कैश जो है उससे हम फॉर्मुलेट करते हैं और फोरकास्ट करते हैं, प्लान करते हैं अपने कैश इनफ्लोज को कि इतने कैश इनफ्लोज हमारे पास आएंगे। नाउ द फर्म मेक्स अ शेड्यूल ऑफ डिसबर्समेंट। अब तो एक तो कलेक्शन की आपकी किस तरीके से कलेक्शन आनी है और किस तरह से आप पेमेंट्स होंगी, उनके हिसाब से आप एक पूरा बजटिंग बनाते हो। अपने डिसबर्समेंट्स को देखते हो कि कितने ज्यादा पेमेंट, अदर पेमेंट्स है, अदर एक्सपेंडिचर है, कहाँ कहाँ पेमेंट करनी है, उन सब का एक शेड्यूल बनाया जाता है। फाइनली व्हाट वी डू इज वी कंप्लीट द कैश बजट, द प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज एंड डिसबर्समेंट विल बी ब्रॉट टुगेदर विद द कैश अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अब क्या करेंगे हमने एक जगह कैश कलेक्शंस को देख लिया, उनको फोरकास्ट किया, एक जगह हमने कैश डिसबर्समेंट को, कैश पेमेंट्स को देखा, उनको टोटल किया, कैश कलेक्शंस एंड डिसबर्समेंट्स उन सबको इकट्ठा किया, फिर एक बिगनिंग बैलेंस कितना है, इन सबको कंसीडर करने के बाद हम एक शेड्यूल बनाते हैं जिसको हम कैश बजट कह देते हैं। नाउ लेट्स लुक एट दिस थिंग कि हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट द कैश बजट। ना, क्योंकि हमने बात ये की है कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं माइक्रो ड्राइव के लिए, माइक्रो ड्राइव का कैश बजट है। नाउ वी हैव माइक्रो ड्राइव, we are preparing the cash budget for the month of, अब this is the way we have to write out, we write, इसका टाइटल बनाया जाता है माइक्रो ड्राइव, जो भी कंपनी का नेम है, इस इन आवर केस इट्स माइक्रो ड्राइव। देन वी राइट डाउन द कैश बजट। अब क्योंकि हम कैश बजट बना रहे हैं, अब किस किस मंथ के लिए, फॉर द मंथ ऑफ, किस किस के लिए हमें क्वेश्चन में कहा गया, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त and September. So we are going to make a cash budget for the month of July, August and September for micro drive.
ना अब जरा शेड्यूल के देख लें शेड्यूल में क्या क्या चीजें। अगर आप इस पे टेबल पे अपनी स्लाइड पे देखें तो एक टेबल है, इस टेबल में आपके पास डिफरेंट मंथ्स लिखे हुए हैं फ्रॉम मई टू सितंबर। हमने कैश बजट किसके लिए बनाना है, जुलाई अगस्त एंड सितंबर को, लेकिन हम मई और जून की कुछ सेल्स और कुछ चीजें कंसिडर करेंगे इन ऑर्डर टू फोरकास्ट फॉर जुलाई अगस्त एंड सितंबर, तो इसलिए हमने मई एंड जून को भी अपने कॉलम्स में रख लिया है। देन वी ऑन द रो साइड वी हैव सेल्स, फर्स्ट कॉलम में अगर आप देखें तो वी हैव सेल्स, हम कितनी सेल हुई है, फिर हमारी कलेक्शंस हैं, वो कलेक्शन जो कि इस मंथ, अगले मंथ, उससे अगले मंथ हुई है, वो सब कलेक्शंस। देन वी हैव पेमेंट्स एंड देन एट द एंड वी हैव नेट गेन और लॉस। इफ यू लुक एट अनदर स्लाइड, अब इसके बाद नेट गेन और लॉस के बाद हमारे पास टारगेट कैश बैलेंस, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, सरप्लस एंड डिफिसिट, हम इसके बाद फाइंड आउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मे। अब अगर हम सेल्स की बात करें तो द सेल्स फॉर द मंथ ऑफ मे, अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है कि सेल्स फॉर द मंथ ऑफ May is 200 million. Now this is very important to consider कि आप एक चीज बजाय इसके कि हम 2 मिलियन हमने लिखे हैं, 200 मिलियन है, तो 200 मिलियन को दोबारा पूरे जीरोस डालने के बजाय what we do is we mention this thing के all the values are in million rupees। तो हम अगर फर्स्ट कॉलम में रुपी डाल दें, फर्स्ट कॉलम में मिलियन लिख दें तो वो ऑटोमेटिकली नीचे एक्सेप्टेबल होगा। हम ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखते हैं, all values in million of rupees। So we have all our values in millions, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे और नॉर्मली हमारे पास जो है वो मिलियंस में। Now let's look at the sales of June। जून में we have sales of 250 million rupees, जो कि आपके क्वेश्चन में मेंशन है। For July it is 300 million rupees। For August it is 400 million rupees। And for September we have 500 million rupees of सेल्स। तो ये हमारी सेल्स फोरकास्ट है जो कि हमने पिछले ट्रेंड को देख के अपने कमिंग अप नेक्स्ट मंथ्स को मैनेज किया या देखा है। फॉर मंथ वी हैव 200 मिलियन, फॉर मे, फॉर जून इट्स 250, फॉर जुलाई इट्स 300, फॉर अगस्त इट्स 400 एंड फॉर सितंबर इट्स 500 मिलियन रुपीज। नाउ लेट्स लुक एट द कलेक्शन। ये तो हमारी सेल्स होगी। अब अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में चीज बड़ी क्लियरली मेंशन हुई है कि 20% ऑफ द सेल्स आर मेड इन द मंथ ऑफ सेल्स। दैट मीन्स जिस महीने में सेल्स हुई है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक द पेमेंट ऑफ मे में अगर जो महीने में सेल मे में जो सेल्स हुई है वो मंथ 20% जो है वो उसी महीने में, 70% उससे अगले मंथ जून में और 10% जो है वो जुलाई में। अब हमने मई और जून को क्यों कंसीडर किया, क्योंकि मई और जून की जो कलेक्शंस हैं उनकी कुछ वैल्यूज आपके जुलाई और अगस्त में आ रही होंगी। लेट्स लुक एट दिस थिंग कि कैसे। सो द फर्स्ट कलेक्शन इज, क्या कलेक्शन है, 70 कितनी 20% सेल्स इन द मंथ ऑफ in the month of sales. So 20% of the sales are done in the month of sale। अगर अब हम क्या करेंगे, हम जो ओरिजिनल अमाउंट है 200 का इंटू 20% फाइंड आउट करेंगे। 20% ऑफ 200 इज 40 रुपीज। ठीक है, अब इससे अगली कलेक्शन क्या होगी, 70% ऑफ द सेल्स इन द मंथ ऑफ in the month or we can say in 70% of the sales are made in 1 month, 70% of the sales are made in 1 month from month of sale। That means our 70% of the sales are made in the month of sale। अब इस 200 का 20% तो निकला, दैट इज इन द मंथ ऑफ सेल। दैट मीन्स मई में जो हमने 200 सेल्स की है, 20% उन सेल्स का हमें मई में मिल गया। उसका 70% कब मिलेगा, अगले महीने। ठीक है, 70% ऑफ द सेल्स आर मेड इन द आर रिसीव्ड, यू कैन से रिसीव इन द मंथ ऑफ सेल, इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल, मतलब मंथ ऑफ सेल के अगला महीना जो है, क्योंकि व्हेन वी से इमीडिएटली फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल, तो मंथ ऑफ सेल कौन सा, मई की 20% मई में मिलेगी, 70% उससे अगले महीने दैट इज जून में मिलेगी। तो लेट्स लुक एट कि हम जून में क्या वैल्यूज करेंगे। जून में 200 का, क्योंकि ओरिजिनल आपकी 200 थी मई की 200 इंटू 0.7 दैट इज 70% ऑफ दैट सेल्स वुड बी इन अगले मंथ दैट इज जून में आपकी, तो ये अमाउंट वुड बी 140। Now you have
70% ऑफ द सेल्स इन द मंथ आफ्टर द मंथ ऑफ सेल, तो मंथ ऑफ सेल से एक महीने बाद व्हाट यू गेट इज कि मई में जो पेमेंट हुई थी, मई में जो सेल्स हुई दैट इज 200 का 20% इज 40 जो कि उसी महीने मिल गया, 200 का 70% जो है वो अगले महीने जून में मिलना है, तो वो जून में मिल गया। नाउ उसके बाद क्या है, द 10% ऑफ सेल्स इन द मंथ, या यू कैन से आफ्टर 2 months of sale. So 10% of the sales are received after 2 months of sale, यानी कि जिस महीने में सेल हुआ, मई में सेल आउट हुआ, उसका 10% हमें जून नहीं तो जुलाई में मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस 200 में जो सेल्स हुई हैं इसका 10% फाइंड आउट करते हैं, इसका 10% फाइंड आउट करेंगे तो दैट वुड बी 20 रुपीज। तो 20 मिलियन रुपीज हमें मिलेंगे जुलाई में जाके। नाउ दिस इज फॉर द मंथ ऑफ मई, जून एंड जुलाई। मई, जून एंड जुलाई की हमारी सेल्स की बात हो रही थी। नाउ फॉर द मंथ ऑफ जून वी हैव सेल्स दैट इज 250 मिलियन। अब 250 मिलियन का 20% जो है इस मंथ, उससे अगले मंथ और फिर उससे अगले मंथ होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्स ऑफ जून, दैट मीन्स 250 million into 0.2, that is 20%, so that the answer would be 170, that would be I think 50 rupees, 50 मिलियन रुपीज आपके आते हैं जून के अंदर अंदर। ठीक है, अब जून से अगले महीने क्या है, 70% ऑफ द सेल्स इन द मंथ आफ्टर द मंथ ऑफ सेल, तो वो हम उससे अगले महीने आ जाएंगे, दैट मीन्स जुलाई में। जुलाई में उसका 70% पेमेंट होगी, दैट इज 70% ऑफ द सेल्स आर मेड आफ्टर 2 months। तो हम क्या करेंगे कि 250 मिलियन का 70%, इफ यू फाइंड आउट 70% ऑफ 250 मिलियन, दैट वुड बी 175। So 175 million rupees would be in 70% would be 70% of the sales that would be in July, जो कि आपकी जून की थी। Now remaining 10% of June's sale would be 10%. That means 250 into 0.1, that would be 25 million rupees. So 25 million rupees आपको अगस्त में मिलेंगे। Now let's look at जुलाई। सेल्स ऑफ जुलाई इज 300 मिलियन। ये अब यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है जो हमने अगले अपना ओरिजिनल फोरकास्टिंग करनी है। हमने मई और जून इसलिए यूज किया क्योंकि कुछ सेल्स ऑफ मई एंड जून जो है वो रिसीव होनी थी आपके जुलाई अगस्त में, तो इसलिए हमने अपने मई एंड जून को कंसिडर किया। तो व्हेन वी टॉक अबाउट जुलाई, तो जुलाई में अब वही सीन है कि 300 into 0.2, that is 20% of the sales are done in the month of July, that would be 60 million rupees। तो 60 million rupees आपके इस मंथ आ जाएंगे। उसके बाद 300 का अगले महीने आपको मिलेगा 70% of those, that would be 210 million rupees। Then when we talk about September, तो सितंबर में जाके इसी जुलाई की तीसरी आपकी पेमेंट होगी 10%, that is 10% into 300 million, that is rupees 30। ये आपकी जुलाई की होगी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अगस्त, अगस्त में 400 मिलियन की सेल्स है। 400 मिलियन की सेल्स को आप किस तरीके से करोगे कि यू हैव 20% ऑफ द सेल्स टू बी मेड इन द मंथ ऑफ सेल, दैट मीन्स 400 into 0.2, दैट वुड बी 80 रुपीज, 80 मिलियन रुपीज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इससे 70% इसकी रह गई है, वो 70% वुड बी इन द नेक्स्ट मंथ, दैट इज 70% ऑफ 400 into 70% वुड बी 280 million rupees। So this is about your August payments। अब अगस्त की जो 10% है वो अक्टूबर में होंगी, तो 20% would be in मंथ ऑफ सेल, दैट इज अगस्त। अगले महीने 70% दैट इज सितंबर, और फिर उसके बाद अक्टूबर में आपकी रिमेनिंग 10% है वो अक्टूबर में होंगी। क्योंकि हम सिर्फ जुलाई अगस्त सितंबर का कैश बजट बना रहे हैं, इसलिए हम अक्टूबर की सेल्स को कंसिडर नहीं करेंगे। जब अक्टूबर से आगे बनाया जाएगा देन विल कंसिडर दैट। नाउ लेट्स लुक एट दिस थिंग कि आपकी सितंबर की किस तरीके से होंगी। अब सितंबर की सेल्स क्या है, सितंबर की 500 मिलियन है और 20% जो है वो उसी महीने में मिलता है, तो 500 into 20 would be 20% would be 100 million rupees। Now this 100 million rupees is 20%। अब 70% and 10% इसका मतलब आगे अक्टूबर और नवंबर में होगा, क्योंकि हम अक्टूबर और नवंबर की सेल्स नहीं बना रहे, हम कैश बजट नहीं बना रहे, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। Now these are your sales total collections। अब let's total them, तो we'll have total collections of, now in the हमें क्योंकि मई जून का नहीं चाहिए, we are considering जुलाई, तो that would be 255 million rupees।
Now when we consider sales for August, that will be 315 million rupees. If we consider September, that would be 410 million rupees. So these are your total collection. Now the same case what we are going to do with your payments. अब payments में क्या scene है कि payments में the first payment is your, हमने देखा था कि 70% of your sale price is your first payment. 70% of your sale price. तो अब अगर हम मई की बात करें, क्योंकि हमें मई और जून की as such चाहिए नहीं है collections, उसमें कुछ as such नहीं, हम जुलाई, अगस्त, सितंबर को यूज करेंगे. Now when we talk about July, August and September, we have 70% of your sales, that means 300 rupees का 70%, that is equal to 210. Now इसके बाद next हमारी अगस्त की कितनी sales है? 400. तो 70% into 400, that is equals to 280. Then September की sales is 500, तो 500 into 70%, that would be 350 million rupees. Now we have payments के अंदर ये original sales price से जो payments आई हैं वो तो 70% जो हमने, we have to make the disbursement जो payment हमने की है, and we have other payments as well. उन अदर पेमेंट्स में हमें, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन के 20 में ये चीज क्लियरली मेंशन है कि 55 मिलियन रुपीस वुड पेड इन जुलाई, 70 मिलियन इन अगस्त एंड 85 मिलियन इन सितंबर. अदर पेमेंट्स के अलावा हमारे पास जो पेमेंट है जिसको हम कहते हैं टैक्स पेमेंट. अब टैक्स पेमेंट सिर्फ और सिर्फ इन द मंथ ऑफ सितंबर है, एंड दैट इज रुपीज 30 मिलियन रुपीज. तो 30 मिलियन रुपीज आपकी टैक्स पेमेंट है इन द मंथ ऑफ सितंबर. एट द एंड हमने क्या करना है, यहाँ पे एक कॉलम और होना चाहिए था, ये हटा दें और we'll do it as total payments. Now total payments हमने करनी है कि इनमें से total number of payments क्या थी. Total number of payments for the month of July is 265 million. Then the total payments for the month of August is 350 million, and the total payments for the month of September is 465 million. So 465 million rupees. Now the next step is to find out the net gain or loss. ठीक है, टोटल नेट गेन और लॉस क्या. अब नेट गेन और लॉस किस तरीके से फाइंड आउट होता है? नेट गेन और लॉस इज इक्वल्स टू टोटल पेमेंट्स माइनस टोटल कलेक्शन. टोटल पेमेंट्स में से आप अपनी टोटल कलेक्शन को माइनस करोगे, देन यू विल नो, कम टू नो कि आपने कितना कैश रिसीव किया, तो उसमें से कितनी पेमेंट कर दी और कितना रिमेनिंग रह गया. तो लेट्स लुक एट दिस थिंग कि हमारे जुलाई में नेट गेन और लॉस कितना आया है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट, वी आर डूइंग 265 minus 255, we would have 10 million, that is the negative amount. Then we have 350 minus 315, that would be 35 million. That is a negative amount, that is your loss. Then when we talk about month of September, that is 465 minus 410, that would be your 55 million loss. Now if you look at the net gain or loss which we have calculated in our last slide, the net gain or loss for the month of July, if we consider the month of July, we have the month of August and the month of September. Now when we talk about the net gain or loss for the month of July, that is 10 million rupees for the month of July. For the month of August, it is 10 million rupees, that is in the loss, and for the September it is 55 million rupees. Now cash at the beginning of the month, if you look at the question, the cash at the beginning of the month was 15 million rupees. So that 15 million rupees is your cash at the beginning of the month. Now out of this 15 million, we have losses of 10 million rupees. If we make payment of 10 million rupees out of these 15, the remaining amount we have is 5 million rupees. This remaining amount of 5 million is your original cumulative cash. It was also written in your question कि जितने भी coming up years हैं उन सब के लिए जो target cash balance है, that must be 10 million rupees. So target cash would be 10 million rupees for the month of July, August and September. If you look at the cumulative cash, the remaining cash we have after making the payment of 10 million rupees is only 5 million rupees. So 5 million है, target cash balance was 10 million rupees. That means हम 5 million shortfall है. That is your deficit for the month of July, that is 5 million rupees is your loss. Now if we talk about the month of August, the remaining, your cumulative cash flow for the previous year become the beginning cash flow for the next month, that is 5 million. The cumulative cash flow of July would become beginning month cash flow
for the month of August. If we look at the loss of month of August, that is 35 million. If we make this 5 million rupees payment for compensating that loss, the remaining amount we would have is 30 million rupees. That will be in losses. The original cash balance we have to maintain, the target cash balance is rupees 10 million. Now if we consider the overall deficit, that would be 40 million, because we have to make the payment of 30 million, that is your loss, plus we have to maintain the target cash balance of 10 million rupees. This 30 million for the month of August would be your cash beginning amount for the month of September, that is 30 million rupees. We have the loss of 55 million in September. We will have the loss plus this loss of 30 million rupees from the previous month. The total amount would be 85 million rupees. Out of this 85, plus we have to make a target cash balance of 10 million rupees. So the overall deficit would be 95 million rupees. Now if we look at the target cash balance, that is 10 million for every month, and if we look at the deficit or the surplus, we can see that we are going to have, if we have forecasted that we are planning our cash, we'll know that we will have losses of 5 million in the month of July, 40 million in the month of August, and 95 million in the month of September. Now in that case, when we have losses, what we have to do is to make certain changes in our forecasting of the cash balances. On cash balance में या अपनी sales collection या payments को थोड़ा speed up करना होगा in order to make these losses into profit. Now that was all about your today's lecture. Let's have a brief summary of this whole chapter. We talked about cash management, that we must have enough cash in hand, minimum amount of cash, and enough cash in order to make certain cash outflows, or make in order to take benefit from your trade discounts. Then we talked about cash management system. In that cash management system, we have collection float and disbursement float. From collection, we get certain amount of cash from from the sales, and certain other investment, for example, marketable securities, investment in marketable securities, and then we make certain disbursements to our creditors or other payments we have to make to the bank. This is your whole system. The whole system information is get to your reporting. That is, you make certain reports in your journal, in your ledger, and other reporting system. And this completes your cash management system. Within cash management system, when we talk about collection, we have a collection float and certain different types of collection float. We have mail float, that is the time period the customer is going to make send your check, and the firm receive that check. That time period in which your check is in the mail is your mail float. The processing float, that is when the firm receives the check and then makes make certain payments in your bank account. So this is your processing float. Then when we talk about availability float, the original deposit slip or the deposit check that has been made in a bank is then when converted into the cash amount, and then the balance is added into the firm's current account or the saving account. That time period, the time period in between, is called your availability float. Now deposit float is the time period from your processing float and availability float. So when we add the time from the processing float and availability float, we call it as deposit float. Then we talked about lockbox system. The lockbox system is basically your old system, that is where your firms create a certain lockbox into with the bank of that certain firm into different locations where you have different customers. और customers आपकी certain payments या remittances deposit कर देते हैं एक lockbox में. That lockbox is then used by the bank. Bank make those remittances, consider those remittances, make certain payments in your account, and this is where your system is speed up. Now if we talk about today's system, it is total electronic. That is, you can make online payments, you can make online deposit, and you can make your payments through your credit card as well. So today's system is totally based on electronic, and all this lockbox system and collection float is considered as an old system. Then we talk about cash budget, where we consider our sales, then our collection, and then our payments. And that schedule help you to know that what is your cash inflow, what is your cash outflow for each and every month, and you can also forecast
those cash flows for the year as well, for each year as well. That is, for example, for 3 years, for 5 years, or even for the 10 years. You make certain, you consider different collections, different payments, then you know your net gain or loss. Then you consider the target cash balance, and in the end what deficit or surplus you have. You can get all this information from forming your or preparing your cash budget. Now that was all about your today's lecture. We'll moving on to financial statement analysis in our next lecture. Thank you.